ਹੈਲੋ एवरीवन ਸੈਲੋਜ਼ਿਜ਼ਮ ਪਾਰਟ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਰਟ 1 ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਸੈਲੋਜ਼ਿਜ਼ਮ। इस वीडियो के नीचे सबसक्राइब बटन एंड बैल आइकन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਸੋਲਵ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਸੈਲੋਜ਼ਿਜ਼ਮ। ਫਰੈਂਡਸ ਸੈਲੋਜ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ 4 ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਲ, ਸਮ, ਨੋ ਐਂਡ ਸਮ ਨੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਸਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ वाले केस ही डिस्कस किए जाएंगे। तो जिस तरह तुम देख रहे हो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल, पॉसिबिलिटी ऑफ सम, नो, तो ये टोटल 7 केसेस बनते हैं जो आप इस वीडियो के वन बाय वन करके डिस्कस करांगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं आप पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल। केस 1 केस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रेंड्स जो पॉसिबिलिटी है उस ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल वाले ही अपने ਕੋਲੇ सेंटेंसेस होंगे। जिस तरह तुम देख रहे हो ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी मीनज स्टेटमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ऑल ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਏ ਹਨ ਉਹ ਬੀ ਹਨ ਐਂਡ ਆਲ ਬੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਲ ਐਂਡ ਸਮ ਨੋਟ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਰੂਲਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਕੈਟਸ ਆਰ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਡੌਗਸ ਆਰ ਐਪਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਡੌਗਸ ਆਰ ਕੈਟਸ, ਫਰੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਕੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੌਗ ਤੋਂ ਕੈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਊਟਰ ਤੋਂ ਇਨਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਊਟਰ ਤੋਂ ਇਨਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਲ ਐਂਡ ਸਮ ਨੋਟ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਡੌਗਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਟ ਫਸਟ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮ ਐਪਲ ਨੋਟ ਬੀਂਗ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਸਮ ਐਪਲ ਨੋਟ, ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਥੇ ਸਮ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਐਂਡ ਸਮ ਨੋਟ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮ ਨੋਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਸਮ ਐਪਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡੌਗਸ, ਫਰੈਂਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਕੈਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਨ ਬੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਆਲ ਡੌਗਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਟਸ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨ ਬੀ ਜਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਬਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮ ਐਪਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡੌਗਸ। ਫਰੈਂਡਸ ਐਪਲ ਤੋਂ ਡੌਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਆਲ ਐਂਡ ਸਮ ਨੋਟ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮ ਕੈਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਐਪਲ। ਕੈਟਸ ਤੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਐਪਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ 2 ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 1 ਐਂਡ 2 ਫੋਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ 1। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਐਂਡ ਸਮ ਨੋਟ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕੇਸ 2। ਕੇਸ 2 ਹੈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਮ। ਫਰੈਂਡਸ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮ ਏ ਆਰ ਬੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਸਮ ਏ ਆਰ ਬੀ ਐਂਡ ਸਮ ਬੀ ਆਰ ਸੀ।
तो अगर फ्रेंड्स ए एंड सी की गल करिए तो हर एक तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, जिस तरह ऑल, सम, नो, सम नोट, जिन्ने भी पॉसिबिलिटी के केस हैं। एंड ए एंड सी दे सिर्फ ऑल एंड सम नोट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली बी एंड सी दे ऑल एंड सम नोट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इन्होंने रूल्स में फॉलो करके ही आप जो क्वेश्चन सॉल्व करांगे सम वाले केसेस का। आओ देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल अपने को है सम ब्लैक आर वाइट। जिस तरह डायग्राम तुसी देख रहे हो, सम ब्लैक जो हैं वो वाइट हैं एंड सम वाइट जो हैं वो ऑरेंज हैं। तो इसके कनकलूजन चैक करते हैं। ऑल ब्लैक कैन बी वाइट, फ्रेंड्स सारे ब्लैक जो हैं वो वाइट हो सकते हैं। अगर इसनों आप ए लैट कर लीए, इसनों बी एंड सी, तो ए एंड बी दे विच जो पॉसिबिलिटी होगी फ्रेंड्स, अगर आप इसका केस 2 दे विच रूल देखिए तो फस्ट 2 दे विच जो पॉसिबिलिटी है ऑल एंड सम नोट की है। तो सिमिलरली इन्होंने आपको पूछा ऑल ब्लैक कैन बी वाइट, कि सारे ब्लैक वाइट हो सकते हैं। हाँ जी, ऑल एंड सम नोट की पॉसिबिलिटी है तो यह हो सकते हैं। तो फस्ट जो होगा अपना राइट होगा। सैकेंड सम ऑरेंज नॉट बीइंग वाइट इज़ ए पॉसिबिलिटी। फ्रेंड सब तो पहला उसी सम नोट चैक करना है स्टेटमेंट दे विच, एंड उस तो बाद सम नोट किहदे विच पूछ रहा ऑरेंज एंड वाइट, ऑरेंज एंड वाइट दे विच। तो इन्हां दे विच भी ऑल एंड सम नोट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके नाल सैकेंड भी रॉन्ग राइट होगा। थर्ड जो अपना केस है ऑल वाइट कैन बी ब्लैक, सारे जो वाइट हैं वो ब्लैक हो सकते हैं। तो ऑल दी पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स एग्जिस्ट कर रही है, तो थर्ड भी जो होगा वो अपना राइट होगा। तो इस तरीके नाल जो तीनों कनकलूजन अपने फॉलो कर रहे हैं तो अपना आंसर ऑल फॉलो आ जाएगा। नैक्सट है केस 3 पॉसिबिलिटी ऑफ नो। पॉसिबिलिटी ऑफ नो मीनस अगर ए एंड बी दे विच किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, बी एंड सी दे विच कोई रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी केसेस की होंगे। जिस तरह नो ए इज़ बी, कोई भी ए बी नहीं है तो आप इत्थे क्रॉस लगा देवांगे। नो बी इज़ सी मीनस बी एंड सी का किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके नाल ए एंड बी दे विच कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ए एंड बी दे विच कोई रिलेशन ही नहीं है। एंड बी एंड सी दे विच भी किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर ए एंड सी की गल करिए तो इन्हों के हर एक तरह की पॉसिबिलिटी होगी, जिमें कि तुसीं देख रहे हो ऑल, सम, नो एंड सम नॉट दी। तो आओ इसनों फॉलो करके इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जिस तरह तुसीं देख रहे हो नो स्नैक इज़ ट्री, नो ट्री इज़ जंगल, कोई भी स्नैक ट्री नहीं है एंड कोई भी ट्री जंगल नहीं है। तो सम स्नैक कैन बी जंगल, कैन बी फ्रेंड्स फिर पॉसिबिलिटी वाला केस है। सम स्नैक कैन बी जंगल, कुछ स्नैक जंगल हो सकते हैं। फ्रेंड्स इसनों अगर ए बी सी आप लैट कर लीए तो ए एंड सी दे विच हर एक तरह की पॉसिबिलिटी होंगी है नो वाले केसेस दे विच। जिस तरह तुसीं इत्थे देख रहे हो ए एंड सी दे विच हर एक तरह की पॉसिबिलिटी जो है अवेलेबल है। तो इस तरीके नाल स्नैक एंड जंगल दे विच जो सम की पॉसिबिलिटी होगी तो फस्ट अपना राइट हो जाएगा। सैकेंड है ऑल ट्री कैन बी जंगल, सारे ट्री फ्रेंड्स जंगल हो सकते हैं एंड इन्हों के कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सैकेंड अपना रॉन्ग होगा। थर्ड सम नोट, सम जंगल नोट बीइंग स्नैक इज़ ए पॉसिबिलिटी, कुछ जंगल जो हैं वो स्नैक होना एक पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स जंगल एंड स्नैक देखिए तो इन्हों भी हर एक तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो थर्ड जो होगा अपना राइट हो जाएगा। इस तरह सैकेंड कनकलूजन फॉलो ना करके 1 एंड 3 फॉलो करनगे। तो ये सी फ्रेंड्स 3 केस ऑल, सम एंड नो दे। तो इन्हों के बेस से ही जो अपकमिंग 4 केस बनते हैं इन्हों कंबाइन करके तो एक बारी फिर इन्हों की रिविजन क्विक रिविजन आप देखते हैं। जिस तरह पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल मीनस जो बाहर तो आप अंदर वाल नूं जावांगे तो 2 केसिस की पॉसिबिलिटी होगी ऑल एंड सम नॉट, होर किसी भी तरह का कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा पॉसीबल च। अगर आप बाहर अंदर तो बाहर वाल नूं आवांगे तो किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स केस 2 की गल करिए सम की, तो ए एंड बी दे विच ऑल एंड सम नॉट की पॉसिबिलिटी होगी। सेम केस जो फस्ट केस के विच पढ़िया सी आपां बाहर तो अंदर वाल नूं जाण समय। एंड बी एंड सी दे विच भी ऑल एंड सम नॉट की पॉसिबिलिटी होगी, बट ए एंड सी दे विच हर एक तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। केस 3 दे विच देखिए तो बिल्कुल ईजी है। अगर ए तो बी दे विच कोई रिलेशन नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। बी एंड सी दे विच रिलेशन नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बट ए एंड सी दे विच हर एक तरह की पॉसिबिलिटी होगी। तो इन्होंने तिन्हों की ही कंबीनेशन तो अगे होर पॉसिबिलिटी वाले केसेस बनते हैं। आओ आप भी 1 बाय 1 करके देखते हैं। हाँ जी, केस 4 जो है फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एंड सम।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑल ਦੇ रूल भी सारे पता है एंड सम ਦੇ रूल भी पता है। तो ये सारे अप्लाई करके ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करांगे। जिस तरह ਤੁਸੀਂ डायग्राम देख रहे हो वेन डायग्राम जो कि इन्होंने स्टेटमेंट्स तो बनी है। ऑल कार्स आर बाइक्स, फ्रेंड सारिया जो कार्स हैं वो बाइक्स हैं। सम बाइक्स आर रोड्स, कुछ बाइक्स रोड्स हैं। सम रोड्स आर रेल्स, सम रोड्स आर रेल्स, सारिया जो रोड्स हैं वो फ्रेंड्स रेल्स हैं। इसका सर्कल जो आएगा वो थोड़ा जिहा एक्सटर्नल बनेगा, इत्थे थोड़ी जी मिसटेक है, इसनूं करैक्ट कर लियो। ऑल रेल्स आर मैट्रो, सारिया जो रेल्स हैं वो मैट्रोज हैं। तो इस तरह इसकी वैन डायग्राम फ्रेंड्स अपने को तैयार हो चुकी है। हुण आपां इस दे जो कनक्लूजन देखते हैं। सम कार्स कैन बी बाइक्स, कुछ कार्स बाइक्स हो सकती हैं। तो इस तरीके नाल किसी भी तरह का कोई रिलेशन पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपां पढ़िया सीगा ऑल वाले केस दे विच अगर बाहर तो अंदर वाल नूं जाने तो ऑल एंड सम नॉट एग्जिस्ट करेगा। अगर अंदर तो बाहर वाल नूं जाने तो किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इन्होंने पूछा सम कार्स कैन बी बाइक्स, तो कार्स इंटरनल हैं एंड बाइक्स आउटर हैं। आप अंदर तो बाहर वाले नूं आ रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फस्ट अपना रॉन्ग होगा। सम रेल्स कैन बी रोड्स, कुछ रेल फ्रेंड्स रोड हो सकते हैं। तो इसकी अगर गल करिए तो इत्थे सम वाला केस बन रहा फ्रेंड्स। इत्थे अगर रेल्स हैं रोड्स हैं एंड इत्थे रेल्स हैं, तो इन्हां दोनों दे विच सम एंड ऑल एंड सम नॉट एग्जिस्ट करनगे। तो सम किसी भी तरह नाल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि आप केस 2 दे विच ऑलरेडी देख चुके हैं। सम रेल्स कैन भी रोड हो सकते हैं, नो फ्रेंड्स, इस दे विच सिर्फ ऑल एंड सम नॉट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो सैकेंड भी जो अपना होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है ऑल बाइक्स बीइंग मैट्रो इज़ ए पॉसिबिलिटी, सारिया जो बाइक्स हैं उन्हों का मैट्रो होना कि एक पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स अगर सम वाले केस दे विच आपां देखिए तो ए एंड सी दे विच हर एक तरह का जो सल्यूशन जो रूल सीगा वो फॉलो करूँगा पॉसिबिलिटी का। तो इस तरीके नाल थर्ड जो होगा अपना राइट हो जाएगा। तो फस्ट 2 कनक्लूजन रॉन्ग होंगे एंड थर्ड जो होगा वो अपना फॉलो करेगा। तो इस तरह ऑल एंड सम के कॉम्बीनेशन नाल भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़े जो मेन बेसिक रूल्स हैं ऑल सम एंड नो दे अगर ये तीनों याद हैं फ्रेंड्स तो तुसीं हर एक तरह का पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को दोबारा अगर समझ आ चुकी है तो वधिया गल है। अगर नहीं अंडरस्टैंड होया तो इन्हां तिन्नां बेसिक रूल्स को दोबारा तो वॉच करो। एंड नैक्सट है अपना केस 5, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एंड नो। ऑल एंड नो का कॉम्बीनेशन है फ्रेंड्स। जिस तरह तुसीं देख रहे हो ऑल ए आर बी, सारे जो ए हैं वो बी हैं एंड नो बी इज सी, कोई भी बी जो है वह सी नहीं है। तो इस तरीके नाल अगर आप देखिए बी एंड सी दे विच किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी एंड बी एंड सी दे विच भी किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मीनस दोनों दे विच क्योंकि बी एंड सी दे विच कोई रिलेशन नहीं है एंड ए जो है वो कंप्लीटली बी दे अंडर आ रहा है। तो ए एंड सी दे विच भी किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इस तरह ऑल एंड नो वाले केस के विच किसी भी वैन डायग्राम के विच कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आओ इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह तुसीं देख रहे हो फ्रेंड्स ऑल फोर्सेस आर एनर्जी, जिन्नियां भी फोर्सेस हैं वो एनर्जी हैं। तो सारिया नूं इसके अंडर ड्रा कर लिया है। ऑल एनर्जी आर पावर, सारी जो एनर्जी है वो पावर है। इसनूं वैन डायग्राम के अकॉर्डिंग बना लिया है। नो पावर इज़ हीट, कोई भी पावर जो है वो हीट नहीं है। तो आओ इस कनक्लूजन चैक करते हैं। नो एनर्जी इज़ हीट, फ्रेंड्स नो एनर्जी इज़ हीट। तो हुण इत्थे अगर ध्यान नाल देखिए तो पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है, क्योंकि इस दे विच किते भी कैन बी या पॉसिबिलिटी वाला वर्ड नहीं आया। तो ये कह रहे हैं नो एनर्जी इज़ हीट। जे आप वैन डायग्राम में देखिए तो इत्थे भी कोई एनर्जी हीट नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स पावर एंड हीट का कोई रिलेशन नहीं है। तो पावर के अंडर जिन्नियां भी डायग्राम होणगियां उन्हां दा भी रिलेशन नहीं होगा हीट के नाल। तो जो फस्ट है अपना बिल्कुल राइट है, मतलब जो ही कह रहा है वो अपना वैन डायग्राम के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है। सैकेंड है मीनस जो फस्ट कनक्लूजन सी वो पॉसिबिलिटी वाला नहीं सी, जस्ट सिंपल सी। सैकेंड है सम फोर्सेस बीइंग हीट इज़ ए पॉसिबिलिटी, कुछ फोर्सेस का हीट होना की पॉसिबिलिटी है। नो फ्रेंड्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हीट एंड पावर के विच किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है तो हीट का एनर्जी एंड फोर्सेस नाल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो सैकेंड है वो अपना रॉन्ग होगा एंड ओनली वन फॉलो करेगा। तो ये सीगा तुहाडा ऑल एंड
नो वाला केस। नैक्सट देखते हैं आप केस 6 पॉसिबिलिटी ऑफ सम एंड नो। इस दे विच फ्रेंड्स अगर देखिए जिस तरह सम ए आर बी, कुछ ए जो हैं वो बी हैं एंड नो बी सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो आप क्रॉस लगा देंगे। तो जो ए एंड सी दे विच पॉसिबिलिटी होगी, इसनों थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना है। पॉसिबिलिटी ओनली नो एंड सम दी एग्जिस्ट करेगी। बी एंड सी दे विच फ्रेंड्स कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जिन्हां दे विच नो वाला रिलेशन है उन्हां च कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होंदी। अगर आप सी तो ए वाल नूं जावांगे तो हर एक तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। फ्रेंड्स इसका ध्यान रखना है, डायरैक्शन जरूर याद रखनी है। ए तो ए एंड नो एंड सम की पॉसिबिलिटी होगी एंड सी तो ए वाल होंदे हुए हर एक तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। इस तो पहला आप डायरैक्शन वाल कभी भी ध्यान नहीं दिता सी, क्योंकि उस डायरैक्शन की इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं सी पहला वाली केसिस दे विच। बट इस दे विच सम नो वाला केस एक स्पैशल केस है, इस दे विच डायरैक्शन का तुसीं जरूर ध्यान रखना है। तो आओ इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। सम विंडोज़ आर चेयर्स, कुछ विंडोज़ फ्रेंड चेयर्स हैं। नो चेयर इज़ टेबल, कोई भी चेयर टेबल नहीं है। तो इसके जो केस चैक करते हैं, सम विंडोज़ बीइंग टेबल इज़ ए पॉसिबिलिटी, कुछ विंडोज़ का फ्रेंड्स टेबल होना कि ये पॉसिबल है। फ्रेंड्स आप अगर इसनों ए बी सी मन के चलीए तो अगर ए तो सी वाल जा रहे हैं, एक गल नोट करनी है फ्रेंड्स, ए तो सी वाल जा रहे हैं तो नो एंड सम दी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। मीनस नो एंड सम दी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, होर कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इत्थे अपने तो सम ही पूछा जा रहा है एंड विंडो तो आप टेबल वाल जा रहे हैं। तो फस्ट जो होगा अपने रूल के अकॉर्डिंग राइट होगा। सैकेंड, ऑल विंडोज़ बीइंग टेबल इज़ ए पॉसिबिलिटी, सारिया विंडोज़ का टेबल होना एक पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी नो एंड सम दी है, ऑल वर्ड कितने भी नहीं है, तो सैकेंड जो होगा अपना रॉन्ग होगा। थर्ड है नो टेबल बीइंग विंडो इज़ ए पॉसिबिलिटी, कोई भी टेबल का विंडो होना कोई पॉसिबिलिटी है। हाँ जी फ्रेंड्स, क्योंकि नो की पॉसिबिलिटी है तो इस तरीके के नाल नो टेबल बीइंग विंडो। अगर टेबल तो विंडो वाल देखिए तो फ्रेंड्स हर एक तरह का जो सोल्यूशन है बेसिक फॉर्म है वो जो है इस पर अप्लाई होगी। ऑल सम नो एंड सम नोट, क्योंकि हम टेबल तो विंडो वाल जा रहे हैं तो नो टेबल बीइंग विंडो इज़ ए पॉसिबिलिटी, तो यह भी अपना की होगा करैक्ट हो जाएगा। इस तरह वन एंड थर्ड सोल्यूशन जो कंक्लूजन जो हैं वो अपने फॉलो करनगे। तो इस तरह के रूल्स तुसीं याद रखने हैं। लास्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, केस 7 पॉसिबिलिटी ऑफ सम एंड सम नोट। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा जिहा एक डिफिकल्ट केस है, बाकी 6 नालों थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल देखना है। जिस तरह तुसीं देख रहे हो सम ए आर नोट बी, कुछ क ये जे हैं जिहड़े बी नहीं हैं। तो मैं इत्थे थोड़ा जिहा एक इत्थे आपां इसनूं डार्क कर दिंदे हैं, जो कि बी का पार्ट है, ए नहीं है। एंड नैक्सट अगर गल करिए सम बी आर नोट सी, कुछ क बी इस तरह के हैं जिहड़े सी नहीं हैं, तो इसनूं भी आपां डार्क कर दिंदे हैं, ये सी का पार्ट है जो बी नहीं है। तो इन्हां दे विच जो पॉसिबिलिटी अकर करेगी वो इस तरीके नाल होवेगी। फ्रेंड्स ए एंड सी दे विच हर एक तरह का जो रूल है वो फॉलो होगा पॉसिबिलिटी का, सारे केस पॉसिबल होणगे। एंड अगर ए तो सी वाल जावांगे, बी वाल जावांगे तो नो एंड सम दी पॉसिबिलिटी होगी। बी तो सी वाल जावांगे तो नो एंड सम की पॉसिबिलिटी होगी। सी तो बी वाल जावांगे तो सारे केस एग्जिस्ट करनगे। सिमिलरली बी तो ए वाल जावांगे तो सारे केस पॉसिबल दे जो एग्जिस्ट करनगे। तो ये तुसीं एक बारी याद कर लेना इहनूं। वैसे एग्जाम दे विच भी क्वेश्चन आउण दे बहुत घट चांसिस हुंदे इस तरह के केस दे, बट देखना जरूर है एक बार। तो आओ इस दे कुछ कंक्लूजन देखते हैं। सम ए कैन बी सी, कुछ ए फ्रेंड्स सी हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं, क्योंकि ऑल ए तो सी तक सारे जो हैं अपने पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो सम ए कैन बी सी हो सकता है, बिल्कुल राइट है। सैकेंड है सम बी कैन बी सी, कुछ बी सी हो सकता है। फ्रेंड्स अगर बी तो सी वाल जाने हैं तो नो एंड सम की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब सम बारे पूछा गया तो सम हो सकते हैं, तो यह भी अपना राइट होगा। अगर इत्थे ऑल बी आर सी हुंदा, अगर फ्रेंड्स इत्थे ऑल बी आर सी हुंदा तो इत्थे ऑल का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऑल अपना की हो जाता रॉन्ग हो जाता। तो सम बारे गल की गई है तो सम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अपना राइट है। नैक्सट है सम ए नोट बीइंग बी इज़ ए पॉसिबिलिटी। हुण फ्रेंड्स सम नोट की गल हो रही है, सम ए नोट बी
नॉट बीइंग बी इज़ ए पॉसिबिलिटी, ए तो बी वाल जा रहे हैं, ए तो बी वाल सिर्फ नो एंड सम की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, नॉट सम नॉट दी। तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो थर्ड अपना की हो जाएगा रॉन्ग। तो इस तरह फस्ट एंड सैकेंड अपने जो कंक्लूजन फॉलो करनगे एंड थर्ड फॉलो नहीं करेगा। तो ये सीगे फ्रेंड थोड़े 7 पॉसिबिलिटी वाले केस, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल सम नो, ऑल सम ऑल नो सम नॉट एंड सम नो एंड सम नॉट। तो इन्होंने तिना फस्ट 3 जो हैं वो तुसीं चंगी तरह कर लो एंड उन्होंने कंबीनेशन नाल ही अगले सॉल्व कर सकते हो। एक बार रिविजन लिए फिर मैं दस दिना तुहानूं, अगर ऑल वाला केस है आपां बाहर तो अंदर नूं जावांगे तो तुहाडे कोले ऑल एंड सम नोट का सल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, मीनस इन्हां दी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर अंदर तो बाहर वाल नूं जावांगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सिमिलरली सम का केस आपां कीता सी, अगर ए बी सी नाल सम का रिलेशन है तो ए एंड बी दे विच भी ऑल एंड सम का रिलेशन होगा एंड बी एंड सी दे विच भी ऑल एंड सम की पॉसिबिलिटी होगी एंड ए एंड सी दे विच हर एक तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ऑल सम नो एंड सम नोट। नो की अगर गल करिए ए बी सी की, तो फ्रेंड्स ए बी सी दे विच अगर किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, ए एंड बी दे विच कोई रिलेशन नहीं है, नो ए इज़ बी है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बी एंड सी दे विच कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी एंड ए एंड सी दे विच हर एक तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो ये थोड़े 7 केसेस सीगे पॉसिबिलिटी केसेस के, इन्हों के रूल नूं नोटबुक ते लिख के याद करो। तो अज दे लई सिर्फ इन्ना कि मिलते हैं फिर नैक्सट चैप्टर के नाल। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बैल आइकन नूं जरूर दबा दिया करो तां जो वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं जदों भी अपलोड की जाऊगी मोबाइल के उत्ते मिल जाएगी। थैंक्स।